Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 3 Black Beauty of our English literature book as we discussed. Students, in our last video, we have completed explained summary of remaining stanzas of this chapter 3 Black Beauty, and we have also read and note down hard words of chapter 3 15 to 27 in our last class. So we have completed all these work in our last video. And today's our topics are first fill in the blanks to complete these sentences, which is page number 23, and word wing. So student, today we shall read and complete exercise A, fill in the blanks to complete these sentences, which is page number 23, and after it we will read and note down word meaning of this chapter 3 Black Beauty in our Fair English Literature notebook, and we shall also note down fill in the blanks to complete these sentences in our Fair English Literature notebook. Okay, so all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Firstly, we are going to solve exercise A, fill in the blanks to complete these sentences in our Fair English Literature book as we discussed. Okay, so look at the page number 23. Exercise A is fill in the blanks to complete these sentences. It's mean fill in the blanks, रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए to complete these sentences. Okay, इन sentences को, इन वाक्यों को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए. Okay, let's see first number sentence. Your first number sentence is the house that the narrator lives in is called. Okay, the house that the narrator lives in is called. The house means घर. Okay, that the narrator lives इज कॉल्ड. इट्स मीन कि जिस घर में नैरेटर रहता था ना, उसे क्या बोलते हैं? ओके, जिस घर में नैरेटर रहता है तो वह क्या कहलाता है? ओके, तो स्टूडेंट, वी हैव रीड दिस चैप्टर 3 ब्लैक ब्यूटी एंड वी नो दैट द हाउस दैट द नैरेटर लिव्स इन इज कॉल्ड बिटविच हॉल. ओके, तो स्टूडेंट, द करेक्ट वर्ड इज बिटविच हॉल. ओके, स्टूडेंट, जो नैरेटर था ना, वो जो ब्लैक ब्यूटी हॉर्स था ना, तो वो कहाँ पे रहता था? बिटविच हॉल में रहता था ना. तो स्टूडेंट, राइट हियर इन द फर्स्ट नंबर ब्लैंक बिटविच हॉल. ओके, बिटविच हॉल is the correct word for first number sentence. So all students write here in the first number blank Birdwich Hall. Clear? Okay, it's mean the house that the narrator lives in is called Birdwich Hall. It's mean कि घर जिसमें नैरेटर रहता था, वो ब्लैक ब्यूटी हॉर्स रहता था, उसे उस घर को बिटविच हॉल कहते थे. ओके, जिस घर में नैरेटर रहता था वह बिटविच हॉल कहलाता था. ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स राइट हियर एज इट इज़ बिटविच हॉल, BIRTWIC बिटविक हॉल, HELL हॉल, बिटविक हॉल. क्लियर? द हाउस दैट द नैरेटर लिव्स इन इज कॉल्ड बिटविक हॉल. इट्स मीन कि नैरेटर ब्लैक ब्यूटी हॉर्स, नैरेटर में स्टूडेंट होता है स्टोरी टेलिंग करने वाला. ओके, इट्स मीन कथा कहने वाला, कहानी कहने वाला. ओके, जैसे हमारी जो स्टोरी है ब्लैक ब्यूटी, ये जो हमारा ब्लैक ब्यूटी हॉर्स था, उसने स्वयं कही है ना. ओके, उसने अपनी लाइफ के बारे में बताया ना, तो ये स्टोरी जो है वो एक नैरेटर ने कही हुई है, ब्लैक ब्यूटी हॉर्स ने कही हुई है. ओके, तो हियर इन दिस सेंटेंस नैरेटर इट्स अ ब्लैक ब्यूटी हॉर्स, जो नैरेटर है वो ब्लैक ब्यूटी हॉर्स है. ओके, तो द हाउस दैट द नैरेटर लिव्स इन इज कॉल्ड, ओके, बिटविक हॉल. इट्स मीन जिस नैरेटर, इट्स मीन ब्लैक ब्यूटी हॉर्स जिस घर में रहता था उसे बिटविक हॉल कहते थे. क्लियर? ओके, लेट्स सी सेकेंड नंबर सेंटेंस. योर सेकेंड नंबर सेंटेंस इज द मास्टर एंड द मिस्ट्रेस वर ब्लैंक एंड ब्लैक टू ऑल लिविंग बींग्स. इट्स मीन कि मास्टर मीन्स मालिक एंड मीन्स और मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन, वर मीन्स थे. ओके, टू ऑल लिविंग थिंग. इट्स मीन लिविंग थिंग, सॉरी, टू ऑल लिविंग बींग्स. ओके, इट्स मीन लिविंग मीन्स टू ऑल लिविंग मीन्स स्टूडेंट होता है सभी जीवों के लिए. ओके, तो स्टूडेंट, द मास्टर एंड मिस्ट्रेस वर गुड एंड काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स. ओके, सो स्टूडेंट राइट हियर इन द फर्स्ट नंबर blank of this second number sentence good, and after it in the second number blank kind, kind. Okay, then your sentence become the master and the mistress were good and kind to all living beings. It's mean कि मालिक और मालकिन सभी जीवों के लिए बहुत अच्छे थे. ओके, सभी जीवों के लिए बहुत अच्छे और दयालु थे. गुड मीन्स अच्छे, काइंड मीन्स दयालु. टू ऑल लिविंग बींग्स मीन्स स्टूडेंट होता है सभी जीवित जीवों के लिए. ओके, सभी जीवित और सभी जीवित जीवों के लिए. इट्स मीन मालिक और मालकिन सभी जीवित जीवों के लिए बहुत ही अच्छे और दयालु थे. क्लियर? गुड मीन्स अच्छे, काइंड मीन्स दयालु. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट हियर इन द फर्स्ट नंबर ब्लैंक of the second number sentence good, and in the and on the second number blank of this second number sentence kind. क्या? Kind means दयालु. क्या? kind.
Let's see third number sentence. Your third number sentence is the master and the farmer Gray had worked for more than 20 years to get rid of blank on horses. Okay. The master it's mean Malik and means of farmer Gray it's mean Kishan Gray. Okay. Gray it's a name of this farmer. ये जो Gray है ना इसका farmer का name है. Okay. Color नहीं है. Had worked means had it's a past perfect tense. Okay. Worked for more than 20 years. It's mean to get rid of means उससे होता है छुटकारा पाना. Okay. Of horses on horses it means घोड़ों पर से. Okay. The master and farmer Gray had worked for more than 20 years to get rid of blank on horses. It's mean कि मास्टर और किसान ग्रे ने घोड़ों पर से क्या हटाने के लिए इट्स मीन मास्टर ने और किसान ग्रे ने घोड़ों पर से हटाने के लिए या घोड़ों को छुटकारा दिलाने के लिए 20 साल से अधिक सालों तक काम किया. तो स्टूडेंट किस पर वर्क किया था उन्होंने? चैकरिन्स पर वर्क किया था ना. 20 ईयर्स से भी मोर ईयर्स तक है ना. तो द करेक्ट वर्ड फॉर दिस थर्ड नंबर सेंटेंस इज चैकरिन्स. और स्टूडेंट राइट हियर in this blank of the third number sentence chickrins. Okay, chickrins. C-H-E-C-K check R-I-N-S-E rins. C-H-E-C-K check R-I-N-S-E chickrins. It's mean होता है लगाम. Okay. The master and farmer Gray had worked for more than 20 years to get rid of chickrins on horses. It's mean मालिक और किसान ग्रे घोड़ों पर से लगाम को हटाने के लिए घोड़ों को लगाम से छुटकारा दिलाने के लिए टू गेट राइड ऑफ इट्स मीन छुटकारा दिलाने के लिए घोड़ों पर से लगाम को हटाने के लिए या घोड़ों को लगाम से छुटकारा दिलाने के लिए चेकरिन से छुटकारा दिलाने के लिए 20 साल से भी अधिक सालों तक एक साथ काम किया था. ओके. तो स्टूडेंट राइट डाउन हेयर चेकरिन्स. ओके. C-H-E-C-K चेक R-I-N-S-E चेकरिन्स. इट्स मीन होता है लगाम. क्लियर? जो हॉर्सेस पे लगाई जाती है. ओके. So student turn your page forward and look at the next page. Look at the page number 24. Our 4 number sentence is the master tries to convince that he does not need check reins on his horses. The master means मालिक, tries means कोशिश कर रहे थे. Okay. कोशिश की. To convince here the meaning of convince that समझाने की. Okay. That he does not needs here the meaning of ही डज़ नॉट नीड इट्स मीन कि उसे ज़रूरत नहीं है. ओके. तो उसे ज़रूरत नहीं है. चैकरिन्स मीन्स स्टूडेंट लगाम. ओके. चैकरिन्स मीन्स लगाम. ओके. तो स्टूडेंट हियर द मीन ऑफ दिस सेंटेंस ऑन हिज हॉर्सेस मीन्स घोड़ों पर. द मास्टर ट्राइज टू कन्विंस ब्लैक दैट ही डज़ नॉट नीड चैकरिन्स ऑन हिज हॉर्सेस. इट्स मीन मालिक ने समझाने की कोशिश की. मालिक समझाने की कोशिश करता है कि घोड़ों पर लगाम लगाने की ज़रूरत नहीं है. या मालिक समझाने की कोशिश करता है कि उसे घोड़ों पर चेकरिन्स या लगाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके. तो स्टूडेंट जो मास्टर थे वो किसको कन्विंस कर रहे थे? कैप्टन लैंगली को, जो उनके फ्रेंड थे. ओके. तो द मास्टर ट्राइज टू कन्विंस कैप्टन लैंगली एंड कैप्टन लैंगली ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ मास्टर. ओके. ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ मास्टर डगलस. ओके. तो स्टूडेंट ब्लैक ब्यूटी हॉर्सेस के जो मास्टर का नेम क्या था? डगलस था. और जो कैप्टन लैंगली है ना, ये कैप्टन लैंगली मास्टर डगलस के इट्स मीन ब्लैक ब्यूटी के जो मास्टर थे उनके फ्रेंड होते हैं. ओके. तो द मास्टर ट्राइज टू कन्विंस कैप्टन लैंगली दैट ही डज नॉट नीड चेकरिन्स ऑन हिज हॉर्स. इट्स मीन मालिक कैप्टन लैंगली को, कप्तान लैंगली को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें घोड़ों पर चेकरिन्स इट्स मीन लगाम लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. क्लियर? Just write down here in this blank 4 number sentence Captain Langley. It's a correct word for this 4 number sentence. C-A-P-T-A-I in Captain, L-A-N-G-L-E-Y, Captain Langley. Clear? And Captain Langley is a friend of Master Douglas. Clear? तो मास्टर जो है मालिक है ब्लैक ब्यूटी के, उन्होंने कैप्टन लैंगली को समझाने की कोशिश की थी कि वो उन्हें अपने हॉर्सेस पे, अपने घोड़े पे चेकरिन इट्स में लगाम लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं. क्या? लेट्स सी 5th नंबर सेंटेंस. 5th नंबर सेंटेंस इज हॉर्सेस वर इंटेंडेड टू हैव देयर हेड्स अ ब्लैंक. ओके. फुल स्टॉप. Horses were intended to have their heads. Horses means घोड़े. were it's your past continuous and plural form. It's mean थे. Intended here the meaning of intended that वी कैन से कि एक बोल सकते हैं कि चाहना. ओके. कि चाहना या नियत बोलते हैं, बट द करेक्ट मीन ऑफ हेयर इंटेंडेड मीन्स चाहना. ओके. मतलब जैसे हमारी कुछ विशेष होती है, चाहना उसे बोलते हैं. टू हैव मीन्स टू हैव दियर हेड्स मीन्स उनके जो हेड्स. ओके. हॉर्सेस वर इंटेंडेड टू हैव दियर हेड्स. तो जो घोड़े थे वो चाहते थे कि उनके जो हेड्स है वो जो शेर है उनके
तो वो कैसे रहे, फ्री रहे, स्वतंत्र रहे ना, ताकि उन पर चैकरिंग्स ना लगाई जाए। ये हॉर्सेस चाहते ना, क्योंकि जो चैकरिंग्स कोई भी पीपल हॉर्सेस पे लगाता है तो उसके माउथ में जो स्ट्रिंग वगैरह जैसे रस्सी जैसे होती है तो उसे बांध लेता है। और जब कभी हॉर्स क्या करते हैं, रॉन्ग वे पे जाता है, गलत रास्ते पे जाता है, तो उसे बहुत तेज़ी से पुल करते हैं, जिससे जो हॉर्स होता है उसे हर्ट होता है, उसके माउथ में पेन होता है, काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये जो मास्टर थे ना, ब्लैक ब्यूटी हॉर्स के जो मास्टर थे, वो इसी के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, वो चैकरिंग्स को रोकना चाहते थे। ओके, और जो हॉर्सेस थे वो भी ये चाहते थे कि उन पर चैकरिंग्स ना लगाया जाए, क्योंकि उनसे चैकरिंग से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता था। ओके, तो हॉर्सेस वर इंटेंडेड टू हैव देयर हेड्स फ्री। ओके, इट्स मीन हियर द मीन ऑफ दिस 5 नंबर सेंटेंस इज कि घोड़े चाहते थे कि उनका सिर स्वतंत्र हो। ओके, घोड़े चाहते थे कि उनका सिर स्वतंत्र रहे। ओके, तो वो अपने सिर को स्वतंत्र रखना चाहते थे। क्लियर? तो स्टूडेंट राइट हियर इन दिस ब्लैंक ऑफ 5 नंबर सेंटेंस, फ्री, FR फ्री। घोड़े चाहते थे कि उनका सिर स्वतंत्र रहे। ओके, so student, I have explained you all sentences of this exercise and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in this exercise. Now we are going to read and note down word meaning of this chapter 3 Black Beauty in our Fire English Literature notebook. So let's see. Your first number word is oppressed. Okay, oppressed, and the meaning of oppressed is treated cruelly and unfairly loaded. It's mean here the mean of this first number फर्स्ट नंबर वर्ड इज कि ट्रीटेड मीन्स बिहेव करना, व्यवहार करना, क्रूअल्टी मीन्स क्रूरता से, ओके, क्रूरता से, एंड मीन्स और अनफेयरली मीन्स बुरा, ओके, नॉट फेयर। हियर द मीन ऑफ दिस फर्स्ट नंबर वर्ड इज कि क्रूरता और अनुचित व्यवहार करना। इट्स मीन क्रूर और अनुचित व्यवहार करना। क्लियर? ऑपरेस मीन क्या है? ट्रीटेड क्रूअली एंड अनफेयरली। ओके, इट्स मीन क्रूरता और अनुचित व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, बैड बिहेव करना। क्लियर? लेट्स सी सेकंड नंबर वर्ड. योर सेकंड नंबर वर्ड इज लोडेड एंड द मीनिंग ऑफ लोडेड इज लोडेड. इट्स मीन हियर द मीनिंग ऑफ लोडेड इज लदा हुआ या भरा हुआ। ओके, जैसे हॉर्स के ऊपर बहुत सारा आर्टिकल वगैरह उस पर डाल दिया जाता है, उसे ला दिया जाता है, उसे बोलते हैं लोडेड. इट्स मीन लदा हुआ या भरा हुआ. लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड. अवर नेक्स्ट वर्ड इज बे, BAY, बे, एंड द मीनिंग ऑफ बे इज रेडियस ब्राउन हॉर्स विथ ब्लैक मेन एंड टेल. रेडियस मीन्स होता है लाल. ओके, नॉन मीन्स भूरा, हॉर्स मीन्स घोड़ा, विथ मीन्स साथ में, ब्लैक मीन्स काले, मेन. हियर द मीन ऑफ मेन इज, स्टूडेंट, मेन का मीन होता है घने बाल या जानवरों के नेक पे जो हेयर होते हैं उसे बोलते हैं. ओके, मेन मीन्स होता है घने, ओके, घने होता है, एंड मीन्स और, टेल मीन्स मूंछ. ओके, रेडियस ब्राउन हॉर्स विथ ब्लैक मेन एंड टेल. इट्स मीन कि गले और पूंछ पर घने काले बाल वाला लाल भूरा घोड़ा. क्लियर? इट्स मीन कि गले और पूंछ पर, नेक और टेल पर काले घने बाल वाला लाल भूरा घोड़ा, उसे बोलते हैं बे, BAY, बे. ओके, and let's see next word. Your next word is plunged, PLUNGD, plunged, and the meaning of plunged is moved suddenly. Okay, moved means चले जाना या घूमना, suddenly means अचानक से. Okay, here the meaning of plunged is moved suddenly, and the Hindi meaning of this word is कि अचानक से चले जाने, अचानक से मूव करना, अचानक से घूमना. ओके, suddenly it's your adverb. Okay, let's see next word. Your next word is brutal. Okay, and the meaning of brutal is cruel and violent. Okay, cruel and violent, it's mean cruel means होता है क्रूर, और and violent means स्टूडेंट होता है हिंसक. Okay, the meaning of brutal is cruel and violent. It's mean क्रूर और हिंसक. Let's see next word. Your next word is splendid, and the meaning of splendid is very impressive, beautiful. Very means बहुत, impressive means प्रभावकारी. Okay, आकर्षित करने वाली. Beautiful means सुंदर. Very impressive, beautiful, it's mean बहुत ही प्रभावकारी, बहुत ही प्रभावशाली, और बहुत ही प्रभावशाली या गंभीर. ओके, और सुंदर. क्या? लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड. योर नेक्स्ट वर्ड इज ग्राइव्ड, GRIEVED, ग्राइव्ड, एंड द मीनिंग ऑफ ग्राइव्ड इज the meaning of grived is sedended. Okay, SADDENED, sedended. In its mean, जो sedended है ना, sedended means स्टूडेंट होता है इट्स रिलेटेड टू सैड. ओके, इट्स मीन होता है स्टूडेंट दुखी. The meaning of grived is sedended. It's mean दुखी. Clear? Let's see next word. Your next word is military, and the meaning of military is connected with soldiers or the armed forces. It's mean ये सैनिकों, soldiers means सैनिकों. Okay, सैनिकों या armed forces means here the meaning of armed force is that सशस्त्र बलों. ओके, सशस्त्र बलों. connected means होता है जुड़ा होना, with में साथ में, connected with soldiers और the armed forces. It means सैनिकों या सशस्त्र बलों से जुड़ा हुआ. ओके, सैनिकों या सशस्त्र बलों से जुड़ा हुआ, उसे बोलते हैं मिलिट्री. क्या?
लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड. योर नेक्स्ट वर्ड इज, जैसे मिलिट्री में स्टूडेंट होता है सेनापति. ओके, द मीन ऑफ मिलिट्री इज सेनापति. जो सोल्जर से, सैनिकों से या सशस्त्र बलों से जुड़ा हो उसे बोलते हैं मिलिट्री. इट्स मीन सेनापति. लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड. इट्स अ 9 number word which is the last word of this word meaning is a regiment. Okay, and the meaning of regiment is a large group of soldiers that is commanded by a colonel. Okay, तो स्टूडेंट इसका मीन है ना रेजिमेंट का, तो वो ये है कि अ लार्ज ग्रुप, एक बड़ा सा समूह ऑफ सोल्जर्स में सैनिकों का. दैट मीन्स जो इच कमांडेड, हियर द मीन ऑफ इच कमांडेड दैट कि जिसकी कमांड जो होती है. ओके, बाय अ कॉलोनल. इट्स मीन कि सैनिकों का एक बड़ा समूह जिसकी कमान एक कर्नल के पास होती है. ओके, इससे बोलते हैं रेजिमेंट. सैनिकों का एक बड़ा ग्रुप. ओके, सैनिकों का एक बड़ा सा समूह जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स हो, बहुत सारे सैनिकों. ओके, जिसकी कमांड जो होती है, कॉलोनल मीन्स कमांडेड मीन्स कमांड. ओके, बाय अ कॉलोनल. इट्स मीन्स कि सैनिकों का एक बड़ा समूह, एक बड़ा सा ग्रुप जिसकी कमांड एक कर्नल के पास होती है ना, उसे बोलते हैं रेजिमेंट. क्लियर? तो स्टूडेंट, I have explained you all word meaning of this chapter 3 Black Beauty, and I hope you must have understood all these word meaning. You have no problem in this word meaning. Clear? So students, let's see fill in the blanks. Students, we have already read fill in the blanks, but now we are going to read and note down these fill in the blanks in our Fair English Literature notebook. So let's see. Okay, तो स्टूडेंट हम लोग रीड कर चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर चुके हैं अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर बुक में. बट नाउ वी आर गोइंग टू रीड एंड नोट डाउन वर्ड मीन, नोट डाउन fill in the blanks. We have already completed word meaning. Okay, here we talk about fill in the blanks. So we are going to note down fill in the blanks of this chapter 3 in our Fair English Literature notebook. Okay, so let's see. Your exercise is fill in the blanks to complete these sentences. Okay, तो इस वाक्यों को इन वाक्यों को पूरा करने के लिए इन रिक्त स्थानों को भरिए. ओके, वाक्यों को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करिए. योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज द हाउस दैट द नरेटर लिव्स इन इज कॉल्ड बिल्ट विथ हॉल. ओके, इट्स मीन कि कहानी कहने वाला नरेटर. इट्स मीन ओके, नरेटर इट्स मीन कहानी कहने वाला. हियर वी टॉक अबाउट ब्लैक ब्यूटी हॉर्स. ओके, इट्स मीन कहानी कहने वाला या ब्लैक ब्यूटी हॉर्स जिस घर पे रहता था उसे वो घर कहलाता है या उसे कहा जाता है तो बिल्टविक हॉल. BIRTWIC के बिल्टविक HALL हॉल. ओके, तो नरेटर इट्स मीन कहानी कहने वाला, स्टोरी टेलिंग करने वाला, या जो ब्लैक ब्यूटी हॉर्स है ना वो जिस घर में रहता है वह घर बिल्टविक हॉल कहलाता है. क्लियर? Let's see second sentence. Your second sentence is the master and mistress were good and kind to all living beings. मालिक और मालकिन सभी जीवों के लिए अच्छे और दयालु थे. क्लियर? लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस. और थर्ड नंबर सेंटेंस इज द मास्टर एंड फार्मर ग्रे हैड वर्क फॉर more than 20 years to get rid of chakrins on horses. Master means Malik and farmer means Kishan. Grey, it's a name of this farmer. Okay, had it's a past perfect tense. Work means काम किया करते थे. Okay, काम करते थे, वर्क करते थे. For more than 20 years, तो 20 सालों से भी अधिक सालों तक ओके उन्होंने वर्क किया. टू गेट राइड ऑफ मीन्स छुटकारा दिलाने के लिए, चैक्रेंस मीन्स लगाम से, ऑन हॉर्सेस मीन्स घोड़ों पर. ओके, द मास्टर एंड फार्मर ग्रे हैड वर्क फॉर मोर देन 20 years टू गेट राइड ऑफ चैक्रेंस ऑन हॉर्सेस. मालिक और किसान ग्रे ने 20 सालों से भी अधिक सालों तक घोड़ों पर से चैक्रिन इट्स मीन लगाम को हटाने के लिए काम किया था. ओके, उन्होंने 20 ईयर्स से भी ज़्यादा ईयर्स तक काम किया था. तो चैक्रिन इट्स अ करेक्ट वर्ड फॉर दिस थर्ड नंबर सेंटेंस. ओके, चैक्रिन CHEC चेक REINS. चैक्रिन मीन्स स्ट्रेंथ लगाम. ओके, जो हॉर्सेस के माउथ में जो एक स्ट्रिंग्स टाइप की बांधी जाती है ना, रस्सी टाइप की, और उससे जब जो हॉर्स कोई भी रॉन्ग वे पे जाता है तो उसे कस के पुल कर दिया जाता है सडनली, उसे बोलते हैं चैक्रिन. ओके, लगाम लगान, जिससे उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है. ओके, एंड इट्स वेरी बैड. ओके, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही बुरा है. क्लियर? कि किसी भी हॉर्स को हर्ट करना, उस पर चैक्रिन्स लगाना. Let's see next sentence. Your next sentence is the master tries to convince Captain Langley that he does not need chakrins on his horses. तो मालिक ने कैप्टन लैंगली इट्स मीन कप्तान लैंगली को ये समझाने की कोशिश करते हैं मालिक कि उन्हें अपने हॉर्सेस पे, अपने घोड़ों पर चैक्रिन्स इट्स मीन लगाम लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ओके, तो मालिक कप्तान लैंगली को ये समझाते हैं कि उन्हें अपने घोड़ों पर चैक्रिन्स इट्स मीन लगाम लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है. क्लियर? Okay, let's see next sentence. Your next sentence is horses were intended to have their heads free. It's mean कि घोड़े चाहते थे कि उनके जो हेड्स हो, उनके जो सिर हो वो फ्री हो. जैसे हमारे हेड फ्री होते हैं ना, हम जहाँ चाहे अपने हेड को मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट बैक, है ना.
तो हम कहीं भी बिल्कुल फ्री हो फील करते ना, अच्छा महसूस करते ना। अगर सपोज़ करिए अगर आपके कोई हेड को एक रस्सी से बांध दे तो आप कैसा फील करोगे? बहुत ज़्यादा एंगर होगा ना, बहुत ज़्यादा बैड फील होगा ना, बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा ना। सेम वैसे ही स्टूडेंट जो हॉर्स होते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, हॉर्स पे ना चैकरिन्स लगा लेते हैं, लगाम लगा देते, उनके माउथ को एक रस्सी से बांध देते हैं। जब ये जो हॉर्स होते हैं रॉन्ग वे पे जाते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, तो उस चैकरिन्स को, उस लगाम को बहुत सडनली मूव करते हैं, बहुत सडनली पुल करते हैं, जिससे क्या होता है, इससे बहुत हर्ट होता है। तो स्टूडेंट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी हॉर्स पे चैकरिन्स लगाम नहीं लगानी चाहिए। ओके, क्योंकि एनिमल जो होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, जीव होते हैं। ओके, कोई नॉन मटेरियल थिंग तो नहीं है ना, किन्हें पेन नहीं होता, उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है ना। तो चैकरिन्स कभी भी किसी भी हॉर्स पे नहीं लगाना चाहिए। क्या? तो जो हॉर्सेस वर इंटेंडेड टू हैव देयर हेड्स, इट्स मीन कि घोड़े चाहते थे कि उनके जो सिर हों वो स्वतंत्र रहें। क्लियर? तो स्टूडेंट आई विल डिस्क्राइब यू all sentences of this exercise A. Fill in the blanks, and I hope you must have understood this exercise A. You have no problem in this exercise A. Okay, student, today's your class work is that complete exercise A, which is page number 23 of chapter 3 Black Beauty in your Fair English Literature book as we discussed. And after it, note down word meaning and exercise A of this chapter 3 in your Fair English Literature notebook. It's a 2 days class, and your homework is that learn word meaning and exercise A of this chapter 3 from your Fair English Literature notebook. It's a 2 days homework. Okay, तो स्टूडेंट आपका क्लास वर्क ये है कि आपको एक्सरसाइज ए जो है फिल इन द ब्लैंक, जो आपकी पेज नंबर 23 पे आपको अपनी बुक में कंप्लीट करनी है एज इट इज़। क्लियर? एंड इसके बाद क्या करना है, आपको अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की जो नोटबुक है ना, उसे वर्ड मीनिंग नोट डाउन करना है, और इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। क्लियर? तो ऑल स्टूडेंट कंप्लीट योर क्लास वर्क, कंप्लीट एक्सरसाइज ए ऑफ दिस चैप्टर 3 ब्लैक ब्यूटी, विच इज पेज नंबर 23 in your English literature book as we said, and after it note down word meaning and exercise a fill in the blanks to complete these sentences of chapter 3 Black Beauty in your Fair English Literature notebook and send me over here. Thank you.